गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने एक वारी एक प्रसंग निकटवर्तियों ਨੂੰ ਸਰਵਣ कराया जो आप जी दे सामने पढ़िया जा रहा है। सिरलेख है अब कभी नहीं भूलेगा। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने गुरमुख दी महान शक्ति दर्शाई है कि नाम दा किणका दे के करोड़ां ही जीवां दा उद्धार करदा है। परम सत्कार योग भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने महान काल कमाई विचों गुरु के प्यारियां नूं गुरमत नाम दा किणका बख्शिया। उन्हां दी गिणती करनी तां बहुत ही कठिन है, परंतु कई एक अलौकिक दृश्य नैणा दे सामने आउंदे हन तां मन सोच दे मंडल तो लंघ के विस्माद मंडल विच जा टिकदा है। जिन्हां प्रेमियां नूं संत रहत रतन माला पढ़न दा अवसर मिलिया है, उन्हां ने श्री महंत करमचंद जी दे त्याग वैराग दे आश्चर्य प्रसंग उस पुस्तक विचों पढ़े हन। कितनी तपस्या ते घोर साधना आपने कीती, वो अकथनीय है। सन 1933 ਜਾਂ 34 ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ परम सत्कार योग श्रीमान भाई साहब जी महाराज ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 8-10 ਸਾਲ ਆਪਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਸ ਮਾਣਿਆ। ਸਰਗੋਦੇ ਸਨ 1944 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਬ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਭੂਲੇਗਾ। ਸਰਗੋਦੇ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। महंत करमचंद जी शाह जीवने वाले महापुरुष अपने साधु समाज नूं लैके भाई साहब जी दे दर्शनां लई श्री मनोहर सिंह दी कोठी पहुंचे। बाहर लान विच संगतां सज रहीआं सन। भाई साहब भाई वीर सिंह जी भी उसे स्थान ते टिके होए सन। श्रीमान महंत करमचंद जी शाह जीवने वाले भी आके सज गए। सिख विद्यक कानफ्रेंस ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪ ਦੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਰਸਦਾਇਕ ਸਨ। ਬਚਨ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਮੁਤਲਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੌਰੰਗ ਸਵਾਮੀ ਸੀ। ਗੌਰੰਗ ਨੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 4 ਵੇਦ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਗਲਭ ਵਿਦਵਤਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜਮਈ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾਵਾਦ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੇੜਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦ ਬੇੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰੰਗ ਸਵਾਮੀ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਲਾਹ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮਲਾਹ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਭਗਵੇ ਵੇਸ ਵਾਲਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੇੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਸਣ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੌਰੰਗ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਗੌਰੰਗ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਅਡੋਲ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰੰਗ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ। ਮੋਢਾ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਅਲਮਸਤ ਨੈਣ ਖੋਲੇ ਤੇ ਗੌਰੰਗ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰੰਗ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, क्या आप मुझे जानते हैं? महात्मा ने सिर हिलाया कि नहीं। ਤਾਂ ਗੌਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। महात्मा ने तकिया ਤੇ ਕਿਹਾ, अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। ਤਾਂ श्री गौरंग ने कहा, शास्त्र विधि के अनुसार आप मुझे सत्कार दीजिए, मुझे आसन दीजिए, क्योंकि मैं प्रागल्भ विद्वान हूं। साधु ने हंगूरा भरया, अच्छा बेटा, आप महाविद्वान हैं, परंतु मेरी नजर में तो आप मुझे महामूर्ख दिखाई दे रहे हो। श्री गौरंग स्वामी दी जिंदगी विच ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਵਸਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਮੂਰਖ ਕਹੇ। कुछ गुस्से विच भर गए ते कहने लगे कि मैं कैसे मूर्ख हूं? बताओ, आपने मेरे में कौन सी मूर्खता की बात देखी है? महात्मा हंस पे ते कहने लगे, बेटा बैठ जाओ, मैं आपको एक अक्षर बताता हूं, वो आपको किसी वक्त ना भूले। खाने वक्त, सोने वक्त, चर्चावाद के समय, गोया के हर समय आपको याद रहे और कभी ना भूले। जब आप ऐसे उस अक्षर को याद कर लोगे तो मैं ना सिर्फ अपना आसन आपको दूंगा, मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। श्री गौरंग स्वामी काल विच कहने लगे, बताओ कौन सा अक्षर है? ਤਾਂ साधु ने कहा, राम। भाई साहब जी अपने बचना नू जारी रखते हुए कहने लगे कि श्री गौरंग स्वामी ने पूछा कि स्वामी ये क्या है? आप कहने लगे, बेटा इसके आगे मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। इतने समय विच गंगा दा दूसरा तट आ गया। लोगां ने बेड़े तो उतरना शुरू किया ते नाल ही श्री गौरंग स्वामी उतर गए। वो अपने चर्चावाद वाले अस्थान ते चले गए। वो साधु किसी होर तरफ चले गए। श्री गौरंग स्वामी जब चर्चा स्थान ते पहुंचे तां लोगां दियां बेअंत भीड़ां सन। जांदियां ही आप चर्चावाद विच उलझ गए। 2-3 घंटे दी बहस मुबाहिसे बाद आप विजयी हो गए। लोकां ने जय जयकार दियां धुनियां लगा दित्तियां। भीड़ां विच आवाज निकल रही सी, श्री गौरंग स्वामी की जय हो, जय हो। रात नूं जदों श्री गौरंग स्वामी जी एकांत होए तां अचानक ही उन्हां दे कन्नां विच ये अखर गूंजे, बेटा तुम महामूर्ख हो। बेड़े वाली कहानी अखां दे सामने आ गई ते गौरंग राम अखर नूं याद करन लग पे। थोड़े छिन्ना बाद नींद आ गई, राम अखर भुल गया। सवेर हुई, जागे, अपनी शरीरक क्रिया विच लग गए। राम अखर आप दी स्मृति विचों बिल्कुल विस्मरण हो गया। कुछ समय बाद फिर याद आ गया। होका लिया ते कहा, जो उस महात्मा ने कहा सी कि गौरंग तू महामूर्ख है, सो ओ बिल्कुल यथार्थ है। श्री गौरंग दे अंदर एक महान उदासी वापर गई कि मैं कितना मूर्ख हाँ, एक मैनू राम दा अखर याद नहीं हुंदा। आप उस वेले जंगलां नूं टुर पे। 12 साल आप इस अखर नूं दिन ते रात पकांदे रहे, पर अखर पक ना सके। घड़ी घड़ी भुल जांदे। उस महापुरुष दे अखर नूं याद करके श्री गौरंग स्वामी कहण कि ओ सतवक्ता सन, ओ यथार्थ वक्ता सन, ओ मेरी मूर्खता नूं समझदे सन। हे प्रभु, ये कितना गौरवता वाला अखर है
जो मैनू भुल जांदा है। एक दिन आप बहुत उदास होए ते विचार कीती कि मैं श्री गंगा जी विच अपने जीवन दा अंत कर दियां, क्योंकि मैं अपनी काल विच बहुत ही असफल रहा हाँ। सो इस ख्याल नू लैके उन्हां गंगा वल ताही कीती ते आप गंगा दे किनारे पहुंच गए। सोचण लगे कि अगर मैं कंडे ते खड़ा होके छाल मारदा हाँ तां शायद मैं डुब ना सकां, क्योंकि कंडे दे नेड़े पानी बहुत ही थोड़ा है। सो मन विच विचार आई कि चलो किसी बेड़े ते बैठ जांदे हाँ ते जदों वो बेड़ा दरिया दे अध विच पहुंचे तदों छाल मार के अपने प्राण अंत कर लवांगे। आप उथों चल के दरिया दे घाट ते पहुंचे। उत्थे बेड़ा चलण नू तैयार सी। आप छाल मार के उस विच जा बैठे। उन्होंने बेड़े ते झात पाई ते की तकिया कि दूजे पासे कोई महात्मा बैठे सन, जिन्होंने के 12 साल पहले महामूर्ख किया सी। भीड़ नू लंघ के श्री गौरंग स्वामी उस महात्मा दे पास चले गए ते चरना ते चौफाल डिग पे ते पुब्बा मार के रोन लग पे। नाल कही जान, हे प्रभु, मैं घोर मूर्ख हूं, मैं महामूर्ख हूं। 12 साल कठिन काल कालनपुर भी मुझे एक अक्षर राम का नाम याद नहीं हुआ। वे मुझे खाने पीने सोने चलने पर भूल जाता है। मैं ठीक महामूर्ख हूं। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। प्रभु रंग विच अस्त अलमस्त साधु दे रब्बी नैन खुले। उन्होंने श्री गौरंग नू आप तकिया। सारी वार्ता जो 12 साल पहले लंघी सी वो अखां दे सामने आ गई ते कहन लगे, बेटा अब आपको कभी नहीं भूलेगा। हाँ जी बेटा, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। इतने अखरां विच पता नहीं की दामनिक जा चुंबक शक्ति सी जो श्री गौरंग दे अंदर प्रवेश कर गई। इतने बचन दे नाल उन्हां दे लूं लूं विचों राम दा नाम निकलण लग पिया। मानो नाम प्रवेश कर गया। भाई साहब जी महाराज कहन लगे कि गौरंग दे अंदर रब दे नाम दी प्रबलता हो गई कि ओ नाम दी धुनी विच मस्त हुंदे तदों जो कोई भी उन्हां दे नाल छो जांदा उस दे अंदर नाम धस जांदा। महंत करमचंद जी बड़ी उच्ची उन्मन अवस्था विच टिक के सतपुरुषां दे बचनां नू सरवण कर रहे सन। उन्हां दे अंदर बेखुदी दी हालत पैदा हो गई। पूरन रस विच पूरत हो के विदा हो गए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।